ایک فنی کلپ تھا, بابا علی ایک کامیڈین ہے, مسلم کامیڈین, انہوں نے بنایا ایک فنی کلپ کہ وہ اپنے ابو کے پاس گئے اور اپنے ابو سے پوچھا, ویڈیو ہے پوری فنی ویڈیو, اور وہ اپنے ابو کو کہا کہ بابا کین آئی لائک سم گرل, کین آئی پرپوز سم گرل. تو بابا نے کہا کہ یس شیور, ایز لانگ ایز شی لیوز ان دس ہاؤس, ایز لانگ ایز شی از دس فیٹ ٹال, ایز لانگ ایز شی از فرام آور فیملی, ایز لانگ ایز شی از آف دس کاسٹ, یعنی ساری کنڈیشن رکھ کے کہا ناؤ یو کین چوز ہوم ایور یو وانٹ. تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ یس وہ دے تو دیتے ہیں چوائس, لیکن ظاہر ہے کہ پھر بڑی اسٹرکٹ کنڈیشن کاسٹ ہی ہونی چاہیے, ہمارے فیملی کے مطابق ہونی چاہیے. آلدو یہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ویل کم ٹو دس ڈسکشن کہ یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اینڈ ایز یو سیڈ, آئی ایم اگین اینڈ اگین ایمفسائزنگ کہ پیرنٹس ہیو دا بگر پکچر, اسپیشلی ایٹ سچ اے ینگ ایج. یو آر مسنگ اے لاٹ آف تھنگس, آپ بہت سی چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے دل لگ جاتا ہے. دین آور یوتھ ڈزنٹ نو دی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین انفیٹویشن اینڈ لو. انفیٹویشن از سم تھنگ ٹیمپرری, کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے, اور ہماری یوتھ کو تو ہر سال سچا پیار ہوتا ہے. یونیورسٹیز میں مطلب ایک سال ہوا, بریک اپ ہوا, پھر اگلے سال پھر سچا پیار ہو گیا. تو یہ سچا پیار بھی بڑی ایک مسٹری ہے کہ واٹ از سچا پیار. ڈو یو تھنک کہ سچا پیار بفور میرج از پاسبل؟ I don't really think so, because I believe that once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala وہ سچا پیار آپ کے دل میں رکھ دیتے ہیں. اللہ دل میں رکھتا ہے آپ کے مودہ و رحمہ. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing, amazing. اور اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ تھا میم کا, وہ یہ تھا کہ رسپانسبل نہیں ہے ابھی بندہ. تو میری یوتھ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا نا رسپانسبلٹی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت گندا ٹرینڈ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبل ہے, یہ نشے میں لگ گیا ہے, یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کی شادی کر دو. یعنی عورت آ کے اسے ٹھیک کر دے گی. وہ ٹھیک کیا بیچاری کرے گی, وہ خود پھنس جاتی ہے. وہ ایکچولی اپنا برڈن اس پہ ڈال رہے ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. دیکھیں کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اتنا خراب نہیں ہے, تھوڑا سا رسپانسبل ہے, شادی ہوتی ہے تو بچے ہوتے ہیں تو تھوڑا رسپانسبل ہو جاتا ہے. بٹ ڈونٹ ٹیک دس رسک یار, آپ کسی کی بچی کو اس لیے لے کر آنے گے ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے. بٹ پہلے سے اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ رسپانسبل ہے, ایٹ لیسٹ وہ اپنے کام تو کر سکتا ہے نا. جیسے آپ نے کہا میں اپنے کام کرتا تھا. ایک اور مجھے یہاں سے بات یاد آئی کہ آپ دونوں سے سوال میں کروں گا کہ شادی سنا ہے کہ رزق بڑھاتی ہے, اور میرے پاس بہت سی مثالیں, میرے 3 دوست کی میرے پاس مثالیں ہیں کہ ان کی جاب نہیں لگ رہی تھی, ان کی شادی, ان کی جابس لگ گئی. اور ایک کی مثال ہے کہ اس کی شادی ہوئی اور اس کی جاب میں اس کو ترقی ملی. So have you experienced such a similar thing? Yes, alhamdulillah, I have. I remember, I was just working a normal job, work from home before marriage. Alhamdulillah, families met, date pakki ho gayi thi, ye wo. To alhamdulillah, shaadi se 2 hafte pehle, I got promoted at work, alhamdulillah. MashaAllah, amazing. Yeah, alhamdulillah. So that, shaadi you experienced it yourself? Yep, I literally experienced it myself, alhamdulillah. Abhi, what do you think about it? Exactly. When I was like, جب میری شادی ہوئی تو I was earning like جو بھی اماؤنٹ میں کما رہا تھا, لیکن آج میں 5 گنا زیادہ کما رہا ہوں الحمدللہ. شادی کے بعد 5 گنا زیادہ, ماشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے نا, اللہ نے کہا کہ ان کو ہم غنی کریں گے. سورہ نور کی آیت ہے, ایگزیکٹلی, یہ اس سے نہ ڈریں, ہم ان کو غنی کریں گے. اور وہ بھی ایک حدیث آتی نا کہ 3 لوگوں کی اسپیشلی اللہ مدد کرتا ہے, پرسنل ہیلپ کرتے ہیں. یہ ذرا حدیث اینڈ یو نو وٹ, اللہ علی بھائی, جب میری I was willing to get married because obviously I was not earning much. کیونکہ اوبویسلی جب ہم کسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی دیں, تو دے سی دس فائنینشیل ٹرم از اے ویری امپورٹنٹ ایکچولی. سو آئی یوز ٹو پرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یا اللہ, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی, اور آپ پرسنل, مجھے آپ کی پرسنل مدد چاہیے, مجھے لوگوں کی مدد نہیں چاہیے. آئی وانٹ یو ان دس افیئر, ان دس میٹر. سو میں اس کا ریفرنس دیتا تھا دعا میں, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپ می. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں لنک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی بات کی. نارملی آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے. آئی تھنک کہ شادی کے بعد جس طرح پروفیسر ہم نے کہا کہ انسان کا آدھا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جو آدھا بچے اس سے اللہ سے ڈرو, اس کے لیے اللہ سے ڈرو. جب آپ اس سے آدھے والے سے اللہ سے ڈر رہے ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں تقوی اختیار کرو, I will give you and you can't even imagine. تو پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, it is about تقوی, it is not about شادی ہوئی تو آپ نے
आपका रिस्क फट गया. It is about taqwa. देखें, ये मैं ऑडियंस को बताता चलूँ, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें नहीं हो रही हैं, ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है. इसका काउंटर भी है, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी मैंने शादी की मेरी तो जॉब चली गई, कोई कहेगा जी मैंने शादी की मेरी तो जिंदगी में वो तरक्की रुक गई. तो ये एक्सेप्शन है, अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, ट्रायल है. जनरली हमारा इस पर ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, कुरान की आयत है मैं गनी करूंगा. भाई तवक्कल करके करें ना, इस वादे पे जो है वो अमल करते हुए शादी करें और फिर देखें इसकी कितनी बरकत होगी. और ये दो लोग नहीं है, ये कितनी केस स्टडीज हैं कि जिन्होंने शादी की, निकाह में आए, क्योंकि निकाह के बाद बंदा हलाल में आ जाता है, निकाह में आने के बाद बंदा एक फोर्ट्रेस में आ जाता है. अल्लाह ताला ने फोर्ट्रेस कहा है निकाह को, किला कहा है, ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है. फोर्ट्रेस का काम ही प्रोटेक्शन होती है, राइट? तो इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फितनास, इट हेल्प्स यू लोअर योर गेज, इट हेल्प्स यू स्टे कमिटेड. यू नो, अगर आप अच्छे खानदान से हैं देन फिर बात कर रहा हूँ, एंड इट हेल्प्स यू यू नो बी सेफ फ्रॉम pornography, from the you know filth of pornography and all such fitna. Yes, it is a very 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 practical method to you know complete half your iman. अच्छा, नेक्स्ट जो मीम है मेरे सामने, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल मीम है जी. लड़का हाथ में रोज पकड़ के आया है और उसने लड़की को कहा है कि विल यू मैरी मी. अगेन ये वो जो आजकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इसमें हम आएंगे अभी. और लड़की ने आगे से कहा आई लाइक यू बट डॉट डॉट डॉट, और फिर लड़के ने क्रेडिट कार्ड निकाला है कि विल यू मैरी मी, तो लड़की फौरन मान गई कि यस आई विल मैरी यू. वेरी आयरॉनिक. हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि पहली तो बात लड़की को यूँ फूल देना जाके, भाई अगर आप इतने ही मर्द के बच्चे हो उसके वालिद को फूल दो, जाके लड़की के वालिद को फूल प्रेजेंट करो. लड़की को क्यों आप कर रहे हो? लड़के के वालिद से जाके जो है वो उसका हाथ मांगो. लेकिन एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस मीम. बड़ी मशहूर मीम हुई, क्रेडिट कार्ड निकाला तो फौरन मान गई. तो ये भी एक अलमिया और आयरॉनिक है कि मतलब लोग ये समझते हैं कि जैसे जहेज की एक मुहिम चली थी, एंटी जहेज कैंपेन, तो उसके जवाब में लड़कों ने एक मुहिम चलाई कि लड़कियां भी तो फिर क्रेडिट कार्ड देखती हैं और 6 फिगर्स देखती हैं. तो डू यू थिंक कि ऐसा गोल्ड डिगर जो एक टर्म है वेस्ट में ज्यादा कॉमन है? Unfortunately, ये सच ही है. It's true. It is prevalent. You know, they look at how much money, what you're gonna give me, क्या क्या दोगे शादी के बाद, stuff like that. Unfortunately, मेरे पास एक लड़का आया, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो रोने लग गया, कहता है कि यार मुझे जो है ना वो ब्रेकअप हो गया मेरा. तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ब्रेकअप होते रहते हैं. मैंने भी थोड़ा मजाक किया उसके साथ, मैंने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हारी शादी कराएंगे, कोई मसला नहीं. ये साइड के दुख ब्रेकअप का नहीं है, दुख इस चीज का है कि मेरा लाखों रुपया लग गया. कभी मैं ये गिफ्ट ला के देता था, कभी मैं जो है वो शॉपिंग करा के लाता था, कभी मैं कैफे से खाना खिलाता था, स्टेक खिलाता था. तो बहरहाल इट डजंट मीन आई एम डिग्रेडिंग आवर वुमेन. माशाल्लाह हमारी जितनी पाकीज़ा और जितनी हयादार अभी तक हमारी सोसाइटी की औरत है, ये मेरा चैलेंज है, वो किसी सोसाइटी की औरत नहीं. यस, मुस्लिम माशरों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ. पाकीज़ा और हया से ये मुराद है कि मतलब रिलेटिवली पाकीज़ा और हया. यस, बाकी कल्चर्स में भी हो सकती हैं, हम किसी पे खुदा ना खास्ता वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा रिलेटिवली पाकीज़ा और हया वाली औरत अभी तक भी हमारी है. बट दिस इज आयरॉनिक एज वेल, दिस डज एग्जिस्ट. और लड़के जैसे हमारे पास आते हैं और रोते हैं. आई थिंक एलिवे, जिस तरह मैं अब शादी के बाद भी जस्ट कंप्लीटेड मैं एमफिल, और मैंने शादी के दौरान ही अभी मैं स्टूडेंट्स में ही रहा हूँ एक्चुअली. तो मैंने ये नोट किया कि ये टू साइडेड है. लाइक बॉयज भी सिर्फ ब्यूटी देखते हैं, दे जस्ट वांट ब्यूटी, दैट्स इट. क्राइटेरिया क्या है? वेरी वैलिड. बिकॉज़ आपके भी दोस्त होंगे अनमैरिड, अभी मेरे भी काफी दोस्त अनमैरिड हैं. व्हाटएवर से लाइक कैसी चाहिए, ब्यूटीफुल. Like they don't have any criteria. जैसे अब्दुल रहीम ग्रीन एक टर्म यूज करते हैं, मेगन फॉक्स इन हिजाब चाहिए. एग्जैक्टली. ये दोनों साइडों पे है. अब दूसरी बात ये कि अगर आप पेरेंट्स की बात कर लें, अगर आप लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, तो लड़की वाले दे आर लुकिंग फॉर दिस, बट लड़के वाले दे आर लुकिंग फॉर द ब्यूटी. दैट्स इट. बिकॉज दे उनका वो क्राइटेरिया नहीं है ना. वेरी वैलिड. क्राइटेरिया सेट नहीं है, क्राइटेरिया इस्लाम के मुताबिक नहीं है. क्राइटेरिया ये कि पीपल वुड बी वाचिंग ओवर बहू, हाउ वुड शी विल बी लुकिंग, वो प्रेशर है. लड़के का प्रेशर ये है लड़की वालों का कि पूछेंगे कि कितना कमाता है, सेट है, सेटल्ड है, कितना पढ़ा. क्राइटेरिया सेट नहीं है जो इस्लामिक क्राइटेरिया. इसकी वजह से लेट मैरिजेस हैं, इसकी वजह से लड़के कहते हैं हमें इतना कमाना पड़ेगा. लड़कियां जो हैं वो अपना लाइक जिम्स आर ऑन, दे आर डूइंग सो मच टू लूज देयर वेट, लाइक व्हाटएवर दे आर डूइंग टू मेक देमसेल्फ ब्यूटीफुल. वो अपना लाइक वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जैसा बनाया उसको चेंज भी करना चाहती है. इस हद तक भी इंसान जाता है जस्ट टू
that criteria. कुछ ऐड करना चाहते Yes, one thing, this is I would say you know very important कि अगर लड़की religious, God fearing सारा कुछ, तो everything else becomes a lot easier. For example, जैसे रबी भाई ने पैसों की बात की है, looks की बात की है, ये वो, if you put Islam first, तो the rest of the things just fall into the puzzle. सारा कुछ आसान बना देते हैं. Amazing, amazing. So you know, a God fearing woman and man, obviously religious, stuck to the deen, everything else, and inshallah will become So easier. proud, माशाल्लाह. कितने देखें कितना अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर के मुंह से बातें सुन रहे हैं हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह इन्हें बरकत दें, ईमान दें. सो एक और मीम चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैरिज तय हो गई दो लड़के लड़की की, लेकिन अचानक से लिखा हुआ है नीचे ली पंडित, कि पंडित कहता है अचानक से कि शादी जो है वो अगले साल होगी क्योंकि आपका इस साल का मुहूर्त नहीं निकला. तो ये जो मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है ना कि आपका टाइम नहीं है अभी शादी होने का, तो ये यहाँ भी एग्जिस्ट करता है. लोग इस्तिखारा कराते हैं शादी का और फिर वो पीर साहब या जो भी है ना वो कहते हैं कि आपका इस्तिखारा नहीं आया, आपका इस्तिखारा ठीक नहीं आया, या आपका इस्तिखारा इस महीने का नहीं आया, या आपका जो है ना इस्तिखारा पूरे साल का ही नहीं आया, तो आप जो है ना वो अगले साल करो या इस डेट को करो. व्हाट इज दिस? क्या मतलब शरीयत में इसकी कोई चीज मिलती है, दलील मिलती है कि शादी की एक खास डेट होती है, शादी का एक खास मंथ होता है और मुहूर्त टाइप चीज, यानी जिस तरह वो मुहूर्त निकलवाते हैं यहाँ पे इस्तिखारा निकलवाया जाता है और पीर साहब जो कहते हैं उसी पे अमल किया जाता है. ये me personally मैं तो नहीं agree करता हूँ कि you know there should be a fixed day according to someone else ये वो, लेकिन जब आपने इस्तिखारा की बात की है, इस्तिखारा obviously is very important. लेकिन पर्सनल Person, of course, personal istikhara. You know, one-on-one, you and Allah have a conversation. You know, do your istikhara and then make a decision. So istikhara is आपने very. किया था इस्तिखारा? Of course, माशाल्लाह, alhamdulillah. istikhara अल्हम्दुलिल्लाह. किया था, कितना yes. करते रहे थे आप इस्तिखारा? Usually, I would do it a lot. Lekin on emotional nights, I would do it a lot more. Allahu Akbar. Emotional nights. What Yeah, are you know, when your emotional taqwa is nights? high, when your deen is high, you Allahu know, Mashallah. go for istikhara. But yeah, alhamdulillah, तो istikhara. कहते हैं कि इस्तिखारा का जवाब भी आता है कि वो ख्वाब में कुछ नजर आता है. इज इट ट्रू? आपको इस्तिखारा का साइन क्या था? आपके लिए इस्तिखारा का साइन? Well, a sign is not necessary, you know. If you've done istikhara and everything's going smooth, that's a sign that you know this is good. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह जी. देखें कितनी पते की बात. ये मैं आपको कहा ना, शादी कराने का फायदा है कि बंदा वाइज बन जाता है, बंदा जो है वो उसका दिमाग ही जो है वो मैच्योर हो जाता है. माशाल्लाह हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठी है. तो रबी, ये जो इस्तिखारा करते हैं और करवाते हैं एक्चुअली, इसकी कोई शरीयत में दलील या आपको लगता है मेरे कि? इल्म में तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने हदीस पढ़ी कि प्रोफेसर सल्लम जो हैं वो सहाबा कराम को इस तरह इस्तिखारा सिखाते हैं जिस तरह कुरान सिखाते हैं, कुरान की सूरत सिखा रहे हैं. अगर आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ें, सो अमेजिंग, इतनी ब्यूटीफुल दुआ है, और उसका अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ें तो उसमें लाइक उसका मफहूम यही है कि अगर ये मेरे लिए रिलीजियसली अच्छा है, माशी तौर पे अच्छा है, सोशली अच्छा है, तब इसको मुझे करीब कर दें, अदरवाइज से दूर कर दें. एंड आई रियली फील, जब मैं ये सोचता हूँ तो आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सजेशन ली है, तो अगर आपने मशवरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ले लिया तो उनसे बड़ा कौन हकीम है. और पर्सनली आपने लेना है Personally ना. है. देखें, आपके घर वाले भी इस्तिखारा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ओन पे करेंगे. वो कहेंगे कि अल्लाह मैं अपने, जैसे वालिद कहेंगे अल्लाह मैं अपने बेटे की शादी करना चाह रहा हूँ, वो उस टर्म्स में करेंगे. आप अपने उस पर्सपेक्टिव से करेंगे, मदर अपने पर्सपेक्टिव से. लेकिन किसी और से जाके, आउट ऑफ द फैमिली जाके, किसी नेक आदमी चले, नेक आदमी को आप कहें कि हमारा इस्तिखारा कर दें, इसकी पहली तो बात शरीयत में दलील नहीं है. दूसरा, मान लें जी कि नेक आदमी चले इस्तिखारा करके दे देता है, जिस चीज पे शरीयत का ठप्पा नहीं है वो रिलायबल नहीं है. ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक जगह काम करते हैं, कुछ चीजें बाय लॉ बाय रूल आपको बताई गई हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये चीज करनी है, तो वो कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल, अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ. तो आप उन्हें वो लॉ या रूल कोट करेंगे तो वो आपको इजाजत दे देंगे. लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाहते हैं जो रूल्स में नहीं है, जो लॉ में नहीं है, तो फिर उस चीज की वो इजाजत नहीं देंगे, ना गारंटी देंगे. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस तो किसी का हो सकता है कि उन्होंने फलाने नेक आदमी से इस्तिखारा कराया, इस्तिखारा ठीक आ गया, शादी हो गई और उसके बाद हंसी खुशी रहने लगे. लेकिन इस्तिखारा पर्सनल होता है. इस्तिखारा अल्लाह और बंदे का आपस में ताल्लुक है, मशवरा लेते हैं हम अल्लाह ताला से. और लोग ये समझते हैं कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं इस्तिखारा कैसे करूंगा. भाई अगर आप गुनाहगार हैं, दिस इज द चांस टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विद अल्लाह. मैं आपको बताऊं कि मेरा रिलेशन अल्लाह से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था ड्यूरिंग इस्तिखारा. व्हेनेवर आई स्टार्टेड इस्तिखारा अबाउट एनीथिंग, मेरा रिलेशन अल्लाह से बेहतर होता है. तो ये तो चांस है कि आप अल्लाह से रिलेशन बेहतर बनाए. लोग कहते हैं कि नहीं हम इस्तिखारा नहीं करेंगे, वी आर टू सिनफुल.
تو یہ اٹس جسٹ لائک سیئنگ کہ بیکاز آئی ایم ٹو ڈرٹی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک بات, کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکا ہوں تو اب مجھے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں. اینی وے موونگ آن ٹو دا نیکسٹ میم. نیکسٹ میم ہے جی کہ پہلے شادی میں دلہن کی طرح صرف دلہن تیار ہوتی تھی, لیکن اب فوٹو اپلوڈ کے چکر میں ساری گرلز دلہن کی طرح تیار ہوتی ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دس میم؟ I agree with that 100%. کافی دفعہ یہ ہوا کہ you know we've gone to events and some unfortunately some events you know they're not segregated, you know they're all mixed.